अब यहाँ से पॉज कर। Spherical mirror. Spherical mirror is a part of hollow sphere. Suppose a hollow sphere which cut in two part. One part is polished on outer side and another part is polished in inner side. That is, in one part a reflecting surface is inner surface and in second part reflecting surface is outer surface. The reflecting surface is inner surface is called concave mirror. There are two types of mirror, concave mirror and convex mirror. Mirror and convex mirror. Concave mirror, polish in outer side and reflecting surface is inner surface, and in convex mirror, polish in inner side and reflecting surface is outer surface. Some terms related to spherical mirror. In spherical mirror, first term is center of curvature. Center of curvature of a spherical mirror is center of hollow sphere of which mirror is a part. Center of curvature of a mirror. Center of curvature of spherical mirror is center of hollow sphere of which mirror is a part. सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो जिस स्फीयर से ये कनकेव मिरर इस बना होता है उसके सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ hollow sphere of which mirror is a part is called radius of curvature. जिस स्फीयर का ये स्फेरिकल मिरर बना होता है उसके रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. थर्ड इज पोल. मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल. नेक्स्ट पॉइंट इज अपर्चर. The part of the spherical mirror which exposed to incident light is called aperture. In figure Mn is aperture. Next point is principal axis. A perpendicular line incident on concave mirror which is passing through center of curvature and pole on both side of the mirror is called principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? एक लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर. प्रिंसिपल फोकस इन कनकेव मिरर. When light rays parallel to the principal axis after reflection from the mirror meet at a point is called principal focus of a mirror. There are two cases. First case is for concave mirror and second is for convex mirror. In concave mirror, light rays parallel to the principal axis after reflection from the mirror actually meet at a point. That point is called principal focus of a concave mirror. In this case, light rays actually meet, so in concave mirror focus is real. In this case, when light rays parallel to the principal axis after reflection from the mirror appears to meet at point and that point is called focus. In case of convex mirror, light rays parallel to the principal axis after reflection from the mirror appears to meet at a point and the point is called focus of a convex mirror. In convex mirror,
light rays appears to meet but not actually meet, so in this case focus is virtual. Topic is sign convention for reflection by spherical mirror. First point is all distances on principal axis measured from pole. In figure, all distances on principal axis is measured from pole. That is distance of focus, which is called focal length, measured from pole, and radius of curvature, distance between pole and center of curvature, is denoted by R, measured from pole. If object is placed at a point on principal axis, then the distance of object, which is represented by U, is measured from pole to the object. अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं तब जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U जो होगी वो P से लेकर इस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस होगी, तो इसे भी हम पोल से ही मेज़र करेंगे। अगर इसकी इमेज C और F के बीच में बनती है तब ये इमेज डिस्टेंस जो होगी वो भी पोल से ही मेज़र करेंगे। तो पोल से इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे इमेज डिस्टेंस कहते हैं और V से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव व्हाइल इन अपोजिट डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और लाइट रेज इंसिडेंट कराते हैं तो इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगी उसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर हम कनकेव मिरर का एग्जांपल लेते हैं तो कनकेव मिरर में फोकस इस साइड में है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ F जो होगा वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज़ नेगेटिव। और इसी कनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट फ्रंट पे रखा गया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस U जो है वो भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी निगेटिव कंसीडर करेंगे। इमेज मिरर के सामने बन रही है तो इमेज डिस्टेंस को V से डिनोट करते हैं। इस केस में इमेज डिस्टेंस जो है वो भी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो V को भी हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इस तरह अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ भी निगेटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U भी निगेटिव लेंगे और इमेज डिस्टेंस V भी निगेटिव लेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा वो भी निगेटिव में लेंगे। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का केस लेते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखी हुई है तो वहाँ से जो लाइट रेज आ रही हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मिलती हुई मालूम हो रही हैं। तो इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, फोकस पे। तो इस केस में यहाँ पे कनकेव मिरर के केस में इंसिडेंट लाइट रेज की डायरेक्शन ये डायरेक्शन है और यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ फोकल लेंथ क्या हम लेंगे, पॉजिटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे रेडियस ऑफ